modification, how it is, the structure is, it is like the different uh, compounds which are present in epicuticle and some in procuticle. Vexillipoprotein in epicuticle and procuticle, it is polysaccharide, proteins and carbohydrates. And then we studied how different modifications are provided and different benefits are provided from this exoskeleton in the form of some joints, sensory structures like bristles and sensilla, and also some gaseous exchange is helpful for these arthropods. And then we studied how ecdysis or molting is performed with the help of hormones from are enzymes from hypodermic glands. So today we are going to study some major functions of skeletal system. Like what is the major functions this skeletal system is providing to the animals in which they are present. So first is support and shape. Okay. So if we see like basic support tissues, basic soft tissues, and serve as the attachment site for the most muscles and provide shape to the body. Like bones are hard part of our body and they support our soft tissues. We all know that our all जितने भी हमारे delicate organs हैं like brain, heart, lungs, they are present in hard outer bony covering. So this is the first function of the support which is provided by the bones to inner soft body tissue. So the next step is next function is protection, just like support. And protection, our bones support our internal organs like brain, spinal cord, heart, and the lungs. And then is the movement. We have studied some types of muscles in which skeletal muscles are attached to the bones, which help in moving the body. Okay, so there are we have studied three types of muscles: cardiac muscles, smooth muscles, and skeletal muscles. So the skeletal muscles are attached with the bones, and these muscles bring message to the bones, and when these muscles contract and relax, these our bones move from one place to other place. And the next important function is mineral homeostasis. We all know that the bones are made up of some calcium, vitamin D, phosphorus salt, and some other salts. So through negative feedback mechanism, like when some things are required, when some chemicals are in deficiency, our bones can release these compounds from the bones and also can take up minerals to maintain homeostasis. We all know that homeostasis is internal protection. Okay, internal like internal maintenance of internal environment. So when there is sometime higher amount of any component, any compound, any ion or anything, so bones can take up to maintain its internal level. And similarly, when something or any component is in deficiency, like calcium or vitamin D or some other compounds like phosphorus and sulfur, so our bones can release these components from them to maintain this internal concentration at a constant fixed level. Okay, so the other is blood cell production. Red and white blood cells are produced in the bone marrow, a connective tissue found within certain bones. Bone marrow ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो हमारे बोन्स हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है. और रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ये रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो स्टेम सेल. So these are the five important functions which are provided by skeletal system. First is support, second is protection, third is movement, number four is mineral homeostasis, like mineral release and mineral uptake for its constant level. And next is blood cell production, like our stem cells have, our bones have bone marrow stem cells. So these bone marrow cells, they help in production of white and red blood cells. So the next topic which we are going to study today is endoskeleton. As the name indicates, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, endoskeleton हमने पढ़ा था exo outside the body, endo inside the body. अब हमने जब एंडोस्केलेटन की स्टडी करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट इट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, बोन्स एंड द कार्टिलेज. ठीक है, जो एंडोस्केलेटन में प्रेजेंट है एंड दे आर मेकिंग एंडोस्केलेटन.
both bones and cartilage are types of rigid connective tissue. Important topic है. हमारे जो ये tissues हैं, they are very hard and they are rigid, and both consist of living cells embedded in the matrix of protein called collagen. हमारे bones और ये जो हमारे cartilage है, जिससे कि cartilage हमारी जो सॉफ्ट बॉडी बोन्स है, जैसे ईयर बोन्स है, हमारी नोज की बोन्स हैं, लाइक दे आर हार्ड बट relatively less hard as compared to our arms and leg type of bones. तो दोनों तरह के जो बोन्स हैं, बोन्स और कार्टिलेज हैं, ये embedded हैं, एक तरह से जुड़े हुए हैं द मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन, मतलब हमारे बोन्स के सारे साइड तरफ एक प्रोटीन का एरिया है, और दिस इज कॉल्ड कोलेजन. Okay, first of all we are going to study bone, like what are bones, what are different types of bone cells. ठीक है, कुछ हमारे बोन के सेल्स हैं वो बोन बनाते हैं, कुछ सेल्स हैं कि जो हमारे बोन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जहाँ कुछ डैमेज हो जाता है हमारा बोन, हमारे बोन्स का पार्ट. तो बोन फॉर्मिंग, बोन मैच्योर सेल्स एंड बोन डिसॉल्विंग सेल्स. तो ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं बोन्स के, हम इसको थोड़ा सा स्टडी करने जा रहे हैं. इट इज मोस्ट रिजिड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अगर मल्टीपल चॉइस में भी आ जाए, बट इज which one is most rigid type of connective tissue? So it is bone. The bone is most rigid type. Collagen fibers of the bones are hardened by the deposition of calcium phosphate. हमने collagen की स्टडी की. The protein matrix which is present outside surrounding the bone cells. So these are collagen. अब इसको फर्दर कैसे हार्ड किया जाता है? By the deposition of calcium phosphate. कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन से ये मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है. बोन सपोर्टिंग आर्म्स एंड द लेग्स कंसिस्ट ऑफ एन आउटर शेल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद स्पॉन्जी बोन्स इन द एंटी. अब हम अगर अपनी बाजुओं और टांगों की बोन्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी बोन्स हैं वो हमारे स्ट्रॉन्गर है, कॉम्पैक्ट बोन्स हैं, काफ़ी हार्ड है, यानी कि कॉम्पैक्ट है, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ फिक्स है, और उनके जो सेंट्रल एरिया है दिस इज स्पॉन्जी. कॉम्पैक्ट जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि डेंस है और स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, और ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट साइड फॉर द मसल्स. उनके जिस जगह पर आकर हमारे मसल जाहिर है वो आउटर साइड है, बोन का हार्ड होगा, सख्त होगा, और मसल के साथ उसकी अटैचमेंट साइड भी होगी, और वो इजीली हमारे मसल हमारे बोन को मूव करवा सकते हैं. So the spongy bone is light, rich in the blood vessels and highly porous. So जो inside bone का हमारा area है, that is spongy, वो blood vessels उसके अंदर है, ज़ाहिर है हमें blood supply भी हमारे bones को है. Continuously इनकी हमारी bones की length, उनकी weight बढ़ रहा होता है, तो blood supply इसलिए ज़रूरी है, इस वजह से वो highly porous है. Cavities of spongy bone contain bone marrow. ठीक है, वेयर ब्लड सेल्स आर. अब जहाँ पर ये जो स्पॉन्जी बोन की कैविटीज हैं, ठीक है, ये जो हमारे इंटरनल स्पॉन्जी बोन्स की कैविटीज होती हैं, उस जगह पर हमारे बोन मैरो पाया जाता है, वेयर ब्लड सेल्स आर फाउंड. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स एसोसिएटेड विद द बोन. वन इज बोन फॉर्मिंग सेल्स, osteoblast. Here you can see this is osteoblast. The next is mature bone cell. This is osteocell. एक हमारे bone cell जो mature bone cell है, this is osteocytes, ठीक है. And this is bone dissolving cells. This is osteoclast, ठीक है, यानी कि जब हमारा कोई डैमेज हो जाता है, बोन्स कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल these type of cells go there, ठीक है. फिर उनको वहाँ से क्या करता है, ओस्टियोक्लास्ट उस डैमेज पार्ट को रिप्लेस करता है विद अ न्यूअर वन. तो these are 3 types of the cell. Important topic है osteoblast, osteocyte and osteoclast. Osteoblast bone forming cell, osteocyte mature bone cells, and osteoclast bone dissolving cell. Early in the development, जब embryonic development हो रही होती है and bone is replacing cartilage, initially cartilage पाया जाता है, soft connective tissue है, उसको जगह को बोन जब रिप्लेस कर रहा होता है तो क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट इन्वेड एंड डिसॉल्व द कार्टिलेज. ये जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं ये उस जगह पर कार्टिलेज की जगह पर पहुंच जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट डिसॉल्विंग दैट टाइप ऑफ कार्टिलेज. उस कार्टिलेज को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है, और उसके बाद वहाँ पर बोन को रिप्लेस कर देता है. देन ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस इट विद द बोन. पहले कार्टिलेज डिसॉल्व होता है,
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। फिर देन ऑस्टियोब्लास्ट की हेल्प से उसको बोन में रिप्लेस किया जाता है। एज बोन्स ग्रो द मैट्रिक्स ऑफ द बोन इज हार्डन्ड एंड द ऑस्टियोब्लास्ट आर ग्रेजुअली इंटरैक्ट विद इन इट। अब जैसे ही बोन साथ साथ स्ट्रॉन्गर हो रही है, वहाँ पर डिपोजिशन हो रही है कैल्शियम फॉस्फेट की, तो क्या हो रहा है कि ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पर इंटरैक्ट इनके यहीं पर रह जाते हैं, पकड़े जाते हैं, एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं एंड देन दे आर कन्वर्टेड टू ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोसाइट क्योंकि बिकॉज दे आर बोन मेच्योर बोन सेल्स और ऑस्टियोसाइट्स। मैं अगेन इसको रिपीट करती हूँ। ब्लड सेल्स, बोन सेल्स हमारे बोन्स इज द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा कोलेजन है फाइबर का, यानी कि जो उसका मैट्रिक्स है, उसको डिपॉजिट किया जाता है विद हेल्प ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब हम जब बोन्स की थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें, हमारे जो आर्म्स और लेग्स की बोन्स हैं, जिस इज आउटर शेल है वो कॉम्पैक्ट बोन होता है, हार्ड बोन होता है, डेंस होते हैं सेल्स। और जो उसका इंटीरियर होता है दैट इज स्पॉन्जी, वो उसके अंदर पोरस होता है ड्यू टू ब्लड सप्लाई। और जो पोर्स हैं वहाँ पर हमारे स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, वेयर इट इज द प्लेस वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म। हमने पढ़ा कि बोन मैरो सेल्स में हमारे रेड ब्लड सेल्स बी एंड red cells and white blood cells are produced. So there are three types of cells, like bone cells, bone forming, osteoblast, mature bone cells, osteocyte, and the bone dissolving osteoclast. जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम पर पहले कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज को जब रिप्लेस करना होता है टू इनटू द बोन, तो क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट ये उस जगह पर जाते हैं, डिसॉल्व करते हैं कार्टिलेज को एंड देन ऑस्टियोक्लास्ट जाके उसको रिप्लेस कर देते हैं विद द बोन से। जैसे ही बोन ग्रो करती है, बोन को हार्डन किया जाता है, सख्त किया जाता है, और फिर उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट आर ग्रेजुअली इंट्रैप्ड, वहाँ पर अंदर वो अंदर की तरफ फिक्स हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है इज कार्टिलेज। कार्टिलेज मैंने आपसे कहा कि जैसे ईयर बोन है, ये सॉफ्टर होता है देन द बोन्स, नर्म होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट कवर्स द एंड्स ऑफ बोन्स एट द जॉइंट्स। ठीक है, जितने हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं और उसके एंड्स को ये वहाँ से कवर करता है एंड आल्सो सपोर्ट्स द फ्लेक्सिबल पोर्शन ऑफ नोज एंड एक्सटर्नल ईयर। हमारे नोज की वो जो हमारे ईयर का आउटर साइड है ये उसको वहाँ से कवर करता है। ठीक है। द लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर कॉन्ड्रोसाइट्स, तो जो हमारे कार्टिलेज के लिविंग सेल्स हैं दे आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। These cells create flexible, elastic, non-living matrix collagen that surrounds the chondrocyte. अब जो हमारे living cells हैं कार्टिलेज के, उनको chondrocytes कहते हैं। यही सेल्स क्रिएट करते हैं एक स्पेसिफिक किस्म का मैट्रिक्स, एक खास किस्म का मटेरियल क्रिएट करते हैं उसको। वो उसके इर्द गिर्द वो होता कैसे है, वो भी फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, और वो हमारे इन कॉन्ड्रोसाइट्स को कवर सराउंड कर लेता है। एक डिफरेंस ये याद रखना है कि सॉफ्टर है, ठीक है, ये हमारे बोन्स की जॉइंट पर प्रेजेंट है। उसके बाद कोई ब्लड वेसल नहीं पाई जाती इन द कार्टिलेज, नो ब्लड वेसल पेनिट्रेट्स इनटू दिस कार्टिलेज। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द। अब कार्टिलेज की टाइप कौन कौन सी हैं, ये फर्क हमने दो फर्क देख लिए, मच सॉफ्टर देन द बोन्स। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, नोज इन एक्सटर्नल ईयर। इसके सेल्स का नाम कॉन्ड्रोसाइट्स है, इसके लिविंग सेल्स, इसमें नो ब्लड वेसल्स है। उसके बाद इसकी टू मेन टाइप्स हैं, हेलाइन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। हेलाइन कार्टिलेज क्या है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप इन ह्यूमन बॉडी। इट इज फाउंड एट मूवेबल जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स जो कि मूव कर सकते हैं, जितने भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा शोल्डर जॉइंट है, हमारे नी के जॉइंट्स हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, तो इस जगह पर हमारा हाईलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे ऊपर हमने स्टडी किया कि एट द एंड्स ऑफ बोन्स की जहाँ जॉइंट्स पाए जाते हैं वहाँ पर ये कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज और मोस्ट अबंडेंट टाइप है। उसके बाद है इलास्टिक कार्टिलेज। It has the matrix containing bundles of collagen fibers. It forms external pin of the ear and the epiglottis. अब हमारा जो ईयर का जो एक आउटर एक पूरा एक लीफ सा है, ठीक है, ये उस एरिया पे मतलब ये इसमें इलास्टिसिटी पाई जाएगी, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है। एंड एपिग्लोटस यानी कि जो हमारे फेरेंक्स में, गले के में हमारे ग्लोटस ऊपर वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटस, ये उस जगह पर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटस। सो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, व्हाट इज कार्टिलेज। क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन कार्टिलेज इज मच सॉफ्टर देन द बोन,
It covers the ends of the bones at the joints and also support the flexible portion of nose and external ear. क्या हमारे nose और external ear को cover support कर रहा है. The living cells of the cartilage are called chondrocytes. अब इनका काम क्या है? They secrete flexible, elastic, non-living matrix. क्या एक तो flexible भी है, elastic भी है, ज़ाहिर इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है. तो ये सेल्स ऐसा मटेरियल सिक्रीट करते हैं दैट इज आल्सो फ्लेक्सिबल, दैट इज आल्सो इलास्टिक इन नेचर, एंड देन द मैट्रिक्स अराउंड कॉन्ट्रोस. इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है. हमने अपने बोन में देखा कि जो स्पॉन्जी एरिया है, दैट इन दैट पार्ट ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट फॉर ब्लड सप्लाई. फिर हमने थ्री टाइप्स ऑफ बोन्स देखे, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट. व्हाइल इन cartilage there are two types of the main types of cartilage: hyaline cartilage, elastic cartilage. Hyaline cartilage most abundant है, it is found at the movable joints. Then elastic cartilage, it has a matrix containing bundles of collagen fibers. और ये किस एरिया में पाया जाता है? External pinna of ear and epidermis. So this was all about today's lecture. Inshallah tomorrow we will study the human skeleton. Okay students, love.